اب میں کارروائی کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے آندھرا اور تلنگانہ کی مشہور شخصیت حضرت مولانا مفتی غیاث احمد صاحب رشادی صدر صفحہ بیت المال سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی ذرین خیالات کو پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم۔ برادران اسلام اور برادران وطن، جس ملک میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں یہ ملک سیکولر ملک ہے، گنگا جمنی تہذیب کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ برسوں سے اس ملک میں ہم ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور دیگر برادری کے افراد مل جل کر برابری کے ساتھ اور مساوات کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے آئے ہیں، اور یہ وہ گلدستہ ہے ہندوستان جس میں ہر قسم کے پھول موجود ہیں، اور یہ سارے پھول مل کر ایک گلدستہ بنتا ہے جس کا نام بھارت ہے، انڈیا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اس ملک میں جو افراط تفریح اور انتشار کی باتیں ہو رہی ہیں اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوششیں اور سازشیں کی جا رہی ہیں اور کسی مذہب کی عظیم شخصیت کی گستاخی اور توہین کی جا رہی ہے، یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ مسلمانوں کی اپنی ایک تاریخ رہی ہے کہ مسلمان کبھی اپنے نبی کی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ سرکار کی توہین کرنا، سرکار کا مذاق اڑانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس لیے کہ کسی ایک چھوٹی شخصیت کا مذاق نہیں ہے، یہ وہ شخصیت ہے جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، جن کو محمد عربی کہتے ہیں، جن کو خاتم النبیین کہتے ہیں، جن کو سید المرسلین کہتے ہیں، جو محسن انسانیت ہیں، جنہوں نے پوری انسانیت کو جینے کا سلیقہ سکھایا، دستور انسانیت سکھایا۔ اس نبی، وہ نبی جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، امی بنا کر بھیجا، وہ امی لقب جس کا ترجمہ کرنے کی ہمارے پاس ہمت نہیں ہے، مگر وہ امی لقب ہونے کے باوجود جنہوں نے کسی کے سامنے زانوئے تلمس طے نہیں کیا، مگر پوری انسانیت نے ان کے سامنے گھٹنے ٹیکے اور علم کی پیاس بجھائی ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں اگر توہین کی جا رہی ہے ان کے کانوں تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ وہ رسول کون ہے۔ وہ رسول وہ ہے جن کو اللہ نے پوری انسانیت کے لیے ہادی اور رہنما اور رہبر بنا کر بھیجا ہے۔ وہ منادی ہے، پوری انسانیت کو انہوں نے پکارا ہے، ینادی منادیہ۔ وہ مبلغ ہے جو کہ بلغ ما انزل الیک، کہ آپ کی طرف جو کچھ نازل کیا گیا ہے پیغمبر وہ پوری دنیا تک پہنچا دیجئے۔ یہ پیغمبر کون ہے؟ جن کو پوری انسانیت کے لیے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم نے نہیں بھیجا پیغمبر مگر آپ کو پوری انسانیت کے لیے بھیجا ہے۔ پیغمبر صرف مسلمانوں کے رسول نہیں ہے، یہ ساری انسانیت کے رسول ہیں، اور ساری انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس نبی کا احترام کرے، ان کی تقدیس کو، ان کے احترام کو، ان کے منصب کو، ان کے مقام کو اور ان کے مرتبے کو پہچانی حکم ہے۔ نبی جج ہے پوری انسانیت کے لیے۔ کوئی شخص نبی کو اگر حکم تسلیم نہیں کرتا تو اسے جان لینا چاہیے کہ وہ نبی کی گستاخی کر رہا ہے۔ نبی پوری انسانیت کے لیے گواہ ہے، نبی پوری انسانیت کے لیے دلیل ہے۔ برہان من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے برہان ہے۔ نبی کون ہے؟ وہ نیک کام کرنے والوں کو خوشخبری دینے والے بشیر ہیں، برائی کے کام کرنے والوں کو ڈرانے والے نذیر ہیں، اور پوری انسانیت کو بلانے والے داعین الی اللہ ہیں۔ وہ کون ہے پیغمبر جن کی توہین کرنے کی ہمت کی ہے؟ ان کے کانوں تک یہ آواز پہنچا دیجئے کہ وہ پیغمبر سراج منیرہ، چمکتا روشن چراغ ہے،
इंसानियत को रोशनी मिली है, जिन्होंने उठने बैठने चलने फिरने जागने कारोबार करने जिंदगी गुजारने का पूरा तरीका सिखाया है। इस्तिवादी जिंदगी हो, आइली जिंदगी हो, खानदानी जिंदगी हो, सारी जिंदगी का तरीका जिस नबी ने सिखाया, ये वो पैगंबर है जिस पैगंबर की मोहब्बत में आप जमा है। हम ये आवाज, ये पैगाम इस ऊंचे इजलास और स्टेज से देना चाहते हैं कि याद रखने की बात है कि जो पैगंबर इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं, ये पैगंबर पूरी इंसानियत के लिए बेहतरीन नमूना है। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तुम ही में से जो पैगंबर आए हैं वो पैगंबर की शान ये है कि वो पूरी दुनिया के लिए नफा का पैगाम लेकर आए हैं। बुजुर्गों और दोस्तों, आज का ये स्टेज इस हकीकत का इजहार कर रहा है कि मुसलमान कभी भी नबी की गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक मुसलमान ने एक यहूदी शख्स के पाक को देखा, वो पढ़ा लिखा आदमी था, बैठा हुआ था, कुछ गौर व फिक्र कर रहा था। वो उसके पास गया, पूछा कि आप कौन हैं? कहा कि मैं एक यहूदी हूँ। कहा कि आप क्या काम करते हैं? उन्होंने कहा कि उसने कहा कि मैं पीएचडी कर रहा हूँ। उसने उससे पूछा गया कि तुमने पीएचडी अगर की है तो तुम किस नतीजे पर पहुंचे हो? तो उसने कहा कि मुसलमान हर चीज को बर्दाश्त कर सकता है मगर वो नबी की गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम क़यामत तक के लिए इस फैसले के साथ जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे कि जब कभी नबी के खिलाफ उंगली उठेगी तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए कि ये हमारा हक है। हम इस सेकुलर मुल्क में जीने वाले लोग हैं। हम इस मुल्क में गंगा जमनी तहजीब के साथ जिए हुए आए हैं। हमने हर एक का हक समझा है। ये वो दीन है जो दीन इस्लाम है, जिस नबी ने हमें तालीम दी है। वो इस बात की तालीम भी दी है कि अगर तुम्हारे करीब में, तुम्हारे पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, वो अगर पड़ोस है, वो तुम्हारा पड़ोसी है, तुम्हें उसका भी हक अदा करना चाहिए। इसीलिए बुजुर्गाने मोहतरम, आज हम सबको चाहिए कि इस मुल्क के जो हालात बदल रहे हैं, हमें कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। आज हम भी सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद रखते हैं, हमारी इंतजामिया से उम्मीद रखते हैं, हमारी पुलिस महकमे से उम्मीद रखते हैं कि वो इंशाअल्लाह हमारे साथ इंसाफ करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन ये बात याद रखने की है कि हम अपने दीन पर कायम रहें। हमारे दिलों के अंदर जहां मोहब्बत रसूल है वही अज़मत रसूल है, वही नबी की इताअत होनी चाहिए। नबी की इत्तिबा के लिए हम जुट जाए। ये हिंदुस्तान की सरजमीन में जो हालात आए हैं, हमें उठाने के लिए आए हैं, हमको जगाने के लिए आए हैं। हमने अपने दीन से गफलत बरती है, हमने अपने नबी की सीरत से गफलत बरती है। हमें अपने नबी की सीरत को अपनाना होगा। जिस नबी पर किताबे इलाही उतरी है वो कुरान मजीद है। उस कुरान मजीद को थामना होगा, उस कुरान मजीद को पढ़ना होगा, उस कुरान मजीद को समझना होगा। ये वो किताब है जो आज से 1500 साल पहले नाजिल हुई और आज तक वो अपनी असली शक्ल पर बाकी है। जिन लोगों ने इस कुरान मजीद की 26 आयतों को कुरान मजीद से निकालने की तहरीक उठाई, आज अल्लाह ने उसका मुंह बंद कर दिया। जिल्लत और रुसवाई उसके हाथ में आई, इज्जत का मुंह नहीं देख सका। जो भी अल्लाह की किताब के साथ ऐसी गुस्ताखी करेगा और नबी की शान में गुस्ताखी करेगा, अल्लाह जिल्लत और रुसवाई उसके हिस्से में लिख देगा। बुजुर्गों और दोस्तों, यहाँ वो लोग भी हैं जिनकी औलाद है, जो माँ बाप है। आपको एक मुसलमान माँ बाप की हैसियत से जिंदा रहना होगा और आपकी जिम्मेदारी होगी कि आपकी वो औलाद जो आपके हाथों में पल रही है, उनको दीन सिखाना होगा, उनको ईमान सिखाना होगा, उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा करनी होगी, उनके दिल में रसूल की मोहब्बत पैदा करनी होगी। उनको ये सिखाना होगा, वही बात सिखानी होगी जो हजरत याकूब ने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में अपने बच्चों से खिताब करते हुए कहा था, लिमा मा ताबुदूना मिन बादी, ए मेरे बेटा बताओ मेरे मरने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे। आज हर बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चे से पूछे, बेटे मैं इस दुनिया से जब चला जाऊं
बसाऊंगा, तुम किसकी इबादत करोगे? बच्चे की जबान से ये यकीन लेकर हमें मरना होगा कि हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारी औलाद, हमारी नस्लें, हमारे पोतरे, हमारे नवासे अल्लाह के एक दीन पर, ईमान पर और एक खुदा की इबादत पर इस मुल्क में और इस धरती में जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह। बुजुर्गों, दोस्तों, जिन जिन दूर दूर इलाकों से आप तशरीफ लाए हैं, मैं आपके कंधे पर एक बोझ डालना चाहता हूँ, जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। और ये मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी कन्नूर और नंदियाल ने एक अजीम शान इजलास जो मुनक्किद किया है, मैं उनको मुबारकबाद में पेश करता हूँ। आपकी ईमानी गैरत है, जिसने ललकारा तो आपने इतना बड़ा मजमा हमारी आंखों के सामने खड़ा कर दिया है। मैं आप तमाम से दरख्वास्त करता हूं, अपने अपने इलाके में कलेक्टर हो और डीजीपी हो और जो भी हो, कलेक्टर और कमिश्नर हो, वहां जाए, एक महजर तैयार करे, मेमोरेंडम पेश करे। यह आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है। आप इस मुल्क के अंदर हम सबको अपने दीन से जुड़कर जिंदगी बसर करनी होगी। नबी की सीरत को इख्तियार करो, इस्लामी तशख्खुस के साथ इस मुल्क में रहो। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ, ये सिख 2% सिख बिरादरी है, जहां भी देखी जाती है नजर आती है। ऐसा क्यों नहीं होता कि इस मुल्क की इतनी बड़ी आबादी जो 14 था 15% हो सकती है, अगर ये मुसलमान अपने वो तशख्खुस के साथ जिंदा रहे जो तशख्खुस नबी ने हमको दिया था, और वो दाढ़ी, वो कुर्ता, वो पाजामा, वो टोपी और वो पगड़ी, वो सारी चीजें, और जुमे की नमाज और 5 वक्त नमाजों की हाजिरी, अज़ान के साथ अल्लाह की तरफ रुजू होने का मिजाज पैदा कीजिए। इंशाअल्लाह इस मुल्क के मुसलमान गालिब होंगे। वो अंतुमुल आलौन, तुम ही गालिब हो। ऐ मुसलमानों, तुम ही गालिब हो। ऐ मोमिनो, कब? इन कुंतुम मोमिनीन, जबकि तुम ईमान वाले हो। ये हालात पलटते रहेंगे, ये हालात बदलते रहेंगे। खुदा की कसम, मुसलमान अपने ईमान के एतबार से कभी नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा इंशाअल्लाह। बुजुर्ग और दोस्तों, हम सबको चाहिए कि हम इन तमाम उमूर पर गौर करें और अल्लाह की तरफ दौड़ें। फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ, नबी की मोहब्बत में जिंदगी गुजारो। याद रखो, अगर अल्लाह के नबी की इताअत करोगे, कल क़यामत के दिन जन्नत में उस नबी के साथ हम इंशाअल्लाह जिंदा रहेंगे। यही एक जज्बे के साथ मैंने आपके सामने बातें रखी हैं। बहुत जरूरत का तकादा है और वक्त का तकादा है, वक्त का तकादा है कि हम इन तमाम उमूर पर गौर करें। याद रखिए, ये जो हालात बदलते हैं, 1400 साल पहले जो कुरान मजीद उतरा है, इस कुरान मजीद ने इस हकीकत को बताती है, तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। ये दिन है कि हम आप लोगों के दरमियान में उलटते पलटते रहते हैं। आज कल किसी और की बारी थी, आज किसी और की बारी है। हालात अल्लाह पलटेंगे और एक वक्त आएगा इंशाअल्लाह जो तदबीरें इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ कर रहे हैं, उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी इंशाअल्लाह। और वक्त आएगा और वक्त बताएगा कि किसने गलती की थी, किसने नाहक कत्ल किया था, किसने नाहक साजिशें की थी, किसने नाहक में इस मुल्क की रियाया पर जुल्म किया था। ये वक्त बताएगा मुसलमानों। इसलिए काबू में रहिए, जोश में आना ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमारे बड़े मौजूद हैं, हमारे अकाबिर मौजूद हैं, हमारे उलमा मौजूद हैं, हमारे मशाइखीन मौजूद हैं। वो हमारी पूरी रहबरी करेंगे, हमें बताएंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और हमारे उलमा एतदाल से हटने वाली जमात नहीं है, हमारे मशाइख एतदाल से हटने वाली जमात नहीं है, बल्कि वो इंसाफ पर, रवादारी पर, मोहब्बत और हमदर्दी पर, गमखारी पर, उल्फत और मोहब्बत के दायरे में रहकर इस मुल्क में अब तक रहते आए हैं और आते रहेंगे। जो लोग ख्वाजा अजमीरी के बारे में जिस शख्स ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, खुदा की कसम मेरी जबान से वो लफ्ज़ निकल नहीं सकता, लेकिन उस नालायक को याद रखना चाहिए। ख्वाजा अजमीरी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे मज़ाहिब के सारे अफराद के ये कायद रहे हैं, वली रहे हैं, साहिब करामत रहे हैं। उनके हक में अगर कोई गुस्ताखी करता है तो याद रखिए उसको उसकी सजा दुनिया में मिलकर रहेगी इंशाअल्लाह। नारे
اللہ تعالیٰ ہم سب کو جس جذبے کے ساتھ ہم آئے ہیں امن کے ساتھ آپ کو رہنا پڑے گا، جوش بے ہوش نہیں کھونا ہوگا، بڑے اطمینان سے امن سے آئیے، محکمہ پولیس کا ساتھ دیجیے، امن کے ساتھ رہیے۔ ہمارا مقصد انتشار نہیں ہے، نہ ہمارے نبی نے ہم کو یہ سکھایا، نہ ہمارے اولیاء نے ہم کو یہ سکھایا ہے، سب کو سکھایا ہے یہی محبت کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس اجلاس کو کامیابی سے ہم کنار کرے اور ہمارا یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچے جن لوگوں تک پہنچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس پیغام کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔